और जितना आप उस पर बने रहते हो, ड्वेल करते हो, अबाइड करते हो, उतना उस पेड़ की जड़ें नीचे तक मजबूत होने लग जाती हैं. And the more you meditate on a thought, the more you stay on it, the more you abide in it, the deeper its roots become. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि शैतान उस मानसिकता के द्वारा, जो नकारात्मक नेगेटिव माइंडसेट है, उस मानसिकता के द्वारा आपके जीवन को कंट्रोल करने लग जाता है. Amen. Hallelujah. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. क्यों ना आप सब अपने हाथों को उठाएं. Come on, lift up your hands wherever you are. We'll just worship the Lord before we go into the Word. उसकी आराधना करें वचन में जाने से पहले. Father, we just welcome you in this place. पिता, हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर. We thank you that this is your house. You're already here, Lord. पिता, ये आपका घर है, आप पहले से यहाँ हैं. Father, this is my prayer that today every sick will go back healed in Jesus' name. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, हर कोई जो बीमार है वो चंगाई पाकर यहाँ से जाए. Every captive will go home free in Jesus' name. हर एक बंधन में पड़ा आजाद होकर के यहाँ से जाइए यीशु के नाम में. And everyone who came depressed, oppressed, will go back shouting with the shouts of joy and victory. और हर कोई जो डिप्रेशन में पड़ा, सताव में पड़ा आया, वो आनंद से चिल्लाते हुए, जय के साथ चिल्लाते हुए यहाँ से जाएगा यीशु के नाम में. Thank you, Father. We are a generation that loves your word. धन्यवाद पिता, हम वो पीढ़ी हैं जो आपके वचन से प्रेम करती है. We find our delight in your word. हम अपना आनंद आपके वचन में पाते हैं पिता. Come on, say a prayer to him right now. Just tell him, Lord, I want to love your word. उससे प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं आपके वचन से प्यार करना चाहता हूँ. Open my understanding that I can comprehend the scriptures. मेरी समझ को खोले कि मैं आपके वचन को समझ पाऊँ प्रभु. I thank you, Father. धन्यवाद पिता. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. I want to welcome each one of you. आप से हर एक का स्वागत करना चाहता हूँ. Amen. And all of those who are watching us online. सब लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं साथ में. Hallelujah. हर हफ्ते हम छतरपुर न्यू दिल्ली में मिलते हैं. We meet every week in Chhatarpur, New Delhi. Amen. Come on. Before we go into the word, can you just shout a shout of victory? आप जय की ललकार लगाएं. ये आवाज है एक जीवित कलीसिया की. This is the sound of a living church. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. We love you too. Thank you so much. God bless you. Everyone who says I love you, I want you to love the word. हर कोई जो कहता है हम आपसे प्यार करते हैं, वो वचन से प्यार करें. Amen. क्योंकि फिर मेरा यहाँ पे खड़ा होना सफल होगा. Because then me standing here is successful. Amen. So आज का जो मैं वचन आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, The word that I want to share with you all today वो है, is very important. कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसको ये इन्फेक्शन ना हुआ हो. There is not one person on the earth that has not had this infection. और ये इन्फेक्शन जो है ये किसी डॉक्टर के टेस्ट में नहीं पकड़ा जाता. And this infection is not diagnosed in any doctor's tests. और ये इन्फेक्शन जो है बहुत खतरनाक है. And this is a very dangerous infection. और अगर आप कुछ नहीं करेंगे And if you don't do anything, तो ये इन्फेक्शन जिंदगी भर आपको सताता रहेगा. then this infection will afflict you all life long. मैं जिस इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं वो है नेगेटिव थिंकिंग का इन्फेक्शन. I'm talking about the infection of negative thinking, नकारात्मक सोच. दुनिया में तो ये है ही, मगर दुख की बात ये है कि कितने सारे परमेश्वर के बेटे बेटियां भी इस इन्फेक्शन की चपेट में हैं. It is there in the world, no doubt, but the sad thing is so many sons and daughters of God are afflicted by this infection. एक इन्फेक्शन जब एक शरीर में प्रवेश करता है, When an infection enters a body, तो जो होस्ट होता है, यानी जो शरीर उस इन्फेक्शन को होस्ट करता है, वो उसी शरीर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है. when an infection enters a body, it starts to destroy the same body of the host in which it entered. It's the same with the negative thinking.
नकारात्मक सोच के साथ If you host negative thinking अगर आप नकारात्मक सोच को जगह देंगे and that thinking becomes infected, और वो सोच दूषित हो गई या इससे ग्रसित हो गई, you will not even realize it that it will start to destroy you, your relationships, your health and everything around you. आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये नकारात्मक सोच आपको, आपके रिश्तों को, आपके स्वास्थ्य और आपके आसपास की सब चीजों को नाश करने लगेगी। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, वो सोचते हैं हाँ शैतान कैसे नाश करता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, हत्या करे और नाश करे, मगर वो कैसे ये करता है? वो ये करता है सबसे पहले विचारों के द्वारा। And many people don't understand this. Jesus said the devil has come to steal, kill and destroy. But how does he do that? Through these negative, wrong thoughts. He will always enter with a thought. वो हमेशा एक विचार के द्वारा प्रवेश करता है। मगर अगर आप एक विचार को अपने अंदर पनपने दोगे, वो एक बीज की तरह है जो थोड़े समय में उससे अंकुर आने लग जाते हैं। But if you allow a thought to go in, it's like a seed that starts to germinate after some time. और वो गलत विचार बार बार जब आप उन पर मनन करते हो, वो एक पेड़ बनने लग जाता है। And when you keep meditating on a wrong thought, it becomes a tree. और जितना आप उस पर बने रहते हो, ड्वेल करते हो, अबाइड करते हो, उतना उस पेड़ की जड़ें नीचे तक मजबूत होने लग जाती हैं। And the more you meditate on a thought, the more you stay on it, the more you abide in it, the deeper its roots become. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि शैतान उस मानसिकता के द्वारा, जो नकारात्मक नेगेटिव माइंडसेट है, उस मानसिकता के द्वारा आपके जीवन को कंट्रोल करने लग जाता है। And many people don't realize, but the devil starts to control their lives through those negative mindsets. Jesus said, "Every tree that my Father has not planted will be uprooted from you." यीशु ने कहा हर वो पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को जो नकारात्मक सोच विचार है, जो नेगेटिव सोच है, जब उसको दर्शाना था तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो एक बगीचे में झाड़ियों के समान है जो अच्छे बीज को भी चोक कर देते हैं, उनका गला घोट देते हैं। When Jesus had to express negative thoughts, when he has to talk about them, he explained them as a weed that choked the good seed. So ध्यान से मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें आज, क्योंकि कितने ऐसे मसीह हैं, वो कलीसिया जब जाते हैं तो वो सीखते हैं, अच्छा हमें क्या करना है, हमें उपवास करना है, तो वो उपवास भी करते हैं। अच्छा क्या करना है, हमें बाइबल पढ़नी है, तो वो बाइबल भी पढ़ते हैं। वो सब चीज वो करते हैं, मगर अपने विचारों को नहीं बदलते या नहीं बदलने देते परमेश्वर को, और इसीलिए उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव नहीं आता। Come on. Many people when they go to church they say, so tell us what we have to do. Okay, so we will fast, we will read the word, we will do all that, but they don't pay any attention on the thoughts that they have, and because of that there is no transformation that comes in their life. बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो ऑटो पायलट में चल रहा है। Many people's lives is running on autopilot. ऑटो पायलट में आप समझते हैं, ऑटो पायलट मतलब आज आप उठेंगे, आप वही करेंगे जो आपने कल किया, 90% वही सोचेंगे जो आपने कल सोचा, वही जो पिछले साल सोचा वही आप अगले दिन सोचोगे, वही आप अगले महीने सोचोगे। सेम माइंडसेट, सेम थॉट्स, same life. So many people wake up in the morning, do the same thing they did yesterday or last year, think the same thoughts they thought last year, the same thoughts they will think next day, next month, and they have the same thoughts and they have the same life. क्योंकि अगर वही विचार हैं तो फिर वही शब्द हैं, because if those are your thoughts, then those will be your और words. अगर वही शब्द हैं And if those तो words, वही फल है जो आप खाओगे। then those fruits is what you will eat. इसलिए कितने सारे आज ऐसे मसीह हैं जो उद्धार को पा चुके हैं, जो कलीसिया जाते हैं। So there are so many believers who have been saved, they go to church, मगर अभी भी उस सिद्ध शांति जो है उससे अनजान है कि वो क्या होती है। but even today they are unaware of that perfect peace. अभी भी अनजान है कि इसका मतलब क्या है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। They are still unaware of what this means, that the Lord is my shepherd. अभी भी अनजान है कि कैसे राज्य में परमेश्वर ने ले आया है। बाइबल बताती है अंधकार के साम्राज्य से, अंधकार की ताकत से छुड़ाकर परमेश्वर ने उनको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में डाल दिया है।